Hello students, in today's class we'll see some more about the strings. In our previous class we have seen the basic of string, how different constructors can be used for initializing or creating string variables. So before watching this, you may refer to the last video first. Okay, so we'll start with some basic functions which are there in string class. So I have made a program strfun is the string function. Few functions I have added here so that we could cover this in this class. So first, very important function and the easiest one is the length function. Now let us see how it works. First, we are creating what? We are creating string s, and the value of string is abc, just 3 letters, and you know it well that whenever we create strings, character array is created and which the indexing starts with 0. So here A has got what index? It has got the index 0. Okay. B has got index 1 and C has got index 2. Total 3 characters are there having index 0, 1 and 2. But the length function just only counts the number of characters in the given string, including the spaces and all. So let us have a before we just start this, let us do one thing. Let us make rest of the things as comment. I mean, this this is multi-line comment, means all these in between codes will not be displayed. Only this thing will be executed. So let us save it and compile it. Yes, and then run it. Yeah. Number of characters 3. Character count 3. Because this has 3 characters. 2 ways I have displayed here. First thing is S is the string object or string variable. We are calling the length function using this object, and the length function will do what? It will count the number of characters in this given string and will put it in or return the value in integer to L. Now we are printing the value of L, and therefore this particular output is there. Number of characters L. L has the number of characters. The same thing we can do like this as well. This is a message, and we are calling the function in itself the println function. So the return will be directly displayed over the screen. So 3. If you want to store it somewhere, we can use it like this. Don't want to store, we just want to display. Then हम लोग यहाँ पर length function का इस तरह से इस्तेमाल करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं. ये काफी सिंपल फंक्शन है, आप जानते हैं. अब हम लोग एक काम करते हैं कि ये आप लोग सीख लीजिए कि अगर हमें किसी चीज को कमेंट बना देना है, मतलब डोंट वांट टू बी पुट इट इन द प्रोग्राम, लाइक अभी ये कमेंट बन गया, ये एग्जीक्यूट नहीं जाएगा. ठीक है. अब हम लोग इस पार्ट को खोलते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन. ये स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यहाँ से. तो यहाँ से फिर हम कमेंट बना देते हैं. तो ये कमेंट का स्टार्टिंग है और नीचे आके देखिए ये एंड है. इस बीच जो भी होगा वो कमेंट बन जाएगा. दैट मींस नॉट बी एग्जीक्यूटेड. सारा हम एक साथ भी एग्जीक्यूट कराएंगे लास्ट में, बट अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं. स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर. स्ट्रिंग्स को हम एक साथ जब रखते हैं एक साथ, तो अलग अलग मैंने तैयार किया है. जैसे आप देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग ए मैंने बनाया है जिसका वैल्यू है एक डिजिट 9. अब आप देखिए कि ये कोटेशन मार्क के अंदर है, यानी कि एक स्ट्रिंग, ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, एक स्ट्रिंग. अब एक दूसरा स्ट्रिंग हम लोग बना रहे हैं S1. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ही इज. ये एक मैसेज है या एक स्ट्रिंग है, समझिए. इसमें प्लस ऑपरेटर है. प्लस ऑपरेटर यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है. यहाँ पर एक एडिंग का काम न करके कॉन्केटनेटिंग का काम कर रहा है. कॉन्केटनेटिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग्स को साथ में रखना. अभी आप देखिए, समझ इस आउटपुट को देखिए.
देखिए, ही इज 9 ईयर ओल्ड, ये कैसे आ रहा है? ही इज आया, ये ए का वैल्यू, ये 9 जो है वो ऐड हो गया, यहाँ पर कॉन्केटनेट हो गया एक्चुअली, और ईयर्स ओल्ड ये साथ में, ये मतलब ये ये स्ट्रिंग लिटरल है, एक फिक्स्ड स्ट्रिंग वैल्यू, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, और ये फिर से एक स्ट्रिंग लिटरल है। ये तीन कंटेंट्स को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है ये, और इसी की वजह से यहाँ पर ये आउटपुट है आपका। ये बाकियों को हम लोग समझेंगे, पहले इसको देखते हैं। अब ये दूसरा पहलू, यहाँ डेटा टाइप चेंज है। अब यहाँ पर हमने इंटीजर यूज किया है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग यूज किया था तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ मैंने इंटीजर यूज किया है। एक A1 एक इंटीजर वेरिएबल है, इसका मतलब सिंपल एक प्लेन नंबर 9 है। अब यहाँ पर देखिए, क्या हम स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं, मगर क्या होगा? टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन कैसे होगा? ये भी, इसका वैल्यू जो भी है 9 ही, तो ये क्या होगा, ये चूंकि स्ट्रिंग्स के साथ है इसलिए ये भी स्ट्रिंग में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, ये तब कन्वर्ट होके स्ट्रिंग बन जाएगा। और अब आप देखिए कि S2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ही इज ऑफ, एक A1 का वैल्यू क्या है 9, 9 ही इज ऑफ 9 ईयर्स, और इसी वजह से ये आ रहा है ही इज ऑफ 9 ईयर्स, ये आउटपुट इसी वजह से आ रहा है। तो सबको ये समझना है, ये अक्सर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यूज करते हैं, कि आपका डेमो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ही इज ऑफ। आप देखिए कि हम डायरेक्ट यूज करें, यहाँ पर हमने कंटेंट को वेरिएबल में डाल दिया, ये पूरा चीज मैंने वेरिएबल में डाल दिया, वेरिएबल, तो ये डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है, जिसकी वजह से ये आउटपुट आ रहा है। इसी चीज को हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर लिख देते हैं, प्रिंटलन के अंदर लिख देते हैं, तो भी वही इफेक्ट आ रहा है, इज ऑफ 9 ईयर। अक्सर यही होता है, अगर हम स्ट्रिंग्स और नंबर को साथ में लिखते हैं, स्ट्रिंग डेटा और इंटीजर डेटा को, तो ओवरऑल रिजल्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसी का और बेहतर एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे एक स्ट्रिंग है 4, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, प्लस ये नंबर है 2+2। तो आमतौर पे लोग शुरुआत में ये सोचते हैं नए प्रोग्रामर्स कि ये 4 होना चाहिए इसका रिजल्ट, बट ये होता क्या है, ये 2 और 2 को साथ में रख देना है। क्यों? क्योंकि ये अब क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग है, इसलिए इसे भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और इसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट हो गया वो, उसके बाद प्लस ऑपरेटर उसे कॉन्केटनेट करता है, उसे जोड़ता नहीं, कॉन्केटनेट मतलब एक साथ रखता है। इसीलिए ये 4 यहाँ से यहाँ तक जो भी है स्पेस के साथ, प्लस ये 2 और 2 अगल बगल रखा गया, कॉन्केटनेट हो गया, यही है। इसमें और भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। अब आप इसको देखिए, S3, ये तो S3 का वैल्यू है, ये चीज S3 प्रिंट हो रहा है। अब अगर हम जोड़ना ही चाहते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस काम करता है। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस मतलब बॉडमास रूल के जैसा कुछ। तो अगर हम जोड़ना ही चाहते हैं तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर, यानी पैरेंथेसिस के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम ऑपरेशन को लिख देंगे 2 प्लस। तो अब ये प्लस क्या कर रहा है, पहले 2+3 को जोड़ लेगा, तो जोड़ लेगा तो 5 हो गया, और फिर उसे कॉन्केटनेट करेगा इसके साथ। तो आप S4 का रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, 5। ठीक है, अब इसी में से हम सिर्फ ये ब्रैकेट को अगर हम रिमूव कर दें और इसे सेव कर लीजिए एक बार, और एक स्क्रीन साफ कर लिया जाता है, और अब आप इसे रन कराइए, आप देखिए वही जिसका आपको शक था वही हुआ। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसे वापस आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, ताकि ऑपरेशन में आप जो करना चाहे आप कर सकते हैं। आप यहाँ कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं, लाइक तो अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा ये। आइए यहाँ पर अगर हम इस तरह से लिख दें, मल्टीप्लिकेशन लिखने के बाद इसे हम यहाँ से अगर हटा देते हैं 2 और ये, अब क्या होगा इसे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस ऑपरेटर का ये काम पहले कर रहा है, क्योंकि इसको समझना होगा आपको, यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये काम कर रहा है, यानी कि इससे ज्यादा प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी इस ऑपरेटर का है, इसलिए पहले इसे मतलब मल्टीप्लाई कर दिया गया और तब उसे ये किया जा रहा है।
तो एक्सपेरिमेंट करके इन चीजों को आप अपने दिमाग में क्लियर कर सकते हैं कि कैसे करना है काम। तो कॉन्केटनेट मेरा समझ में आ रहा होगा आपको, अगर नहीं आ रहा है तो उसको रिपीटेडली एक बार देखिए और आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। अब मैं इस पार्ट को, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने कमेंट बना दिया। ये कमेंट बना देना ये एक्चुअल में डिलीट करने से बेहतर है। डिलीट करने से क्या होगा, कोड तो चला जाएगा। अभी क्या हो रहा है, कोड वहीं पर है बट ये मुझे है ही नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन। कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन हम लोग देखेंगे हैं, उसके पहले इसे फिर यहाँ से कमेंट बना देते हैं। चलिए ये पार्ट हम लोग देखें, कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन। ये इजी है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब तो वहां से अक्षरों को निकालना, ठीक है। तो कुछ बेसिक फंक्शन है यहाँ पर कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान से देखिए। ये कैरेक्टर सी एच इक्वल टू S1। S1 क्या है, S1 मैंने ऊपर में जो बनाया था यही S1 है। अब चूंकि अब इसे कमेंट कर दिया गया है तो ये काम करने में तकलीफ पैदा करेगा, इसलिए कमेंट को हटा देते हैं हम लोग। फिलहाल कमेंट हटा देते हैं। हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि S1 को हम लोग रेफर कर रहे हैं, ठीक है। S1 को हम लोग रेफर कर रहे हैं, इसलिए हमें S1 का अस्तित्व होना जरूरी है। अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, कैरेक्टर एट 9। ध्यान से देखिए, कैरेक्टर एट 9। तो S1 में आइए, काउंट करिए जीरो से, जो इंडेक्स 9 लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। S1 is that S1? हाँ, ध्यान से फिर से एक बार, 0 1 2 3 4 5। 5 यहां तक आए। 6 ये है, ए हमारा 6। फिर 7 8 9। डोंट गेट कंफ्यूज, ध्यान से देखिए। स्ट्रिंग S1 का वैल्यू क्या है वो देखिए पहले, 0 1 2 3 4 5 यहां तक। उसके बाद 6 पोजीशन पे हमारा 6 इंडेक्स पे ए है जो कि 9। फिर 7 पे स्पेस है, 8 पे ये है और 9 पे ई है हमारा। अब चला के देखते हैं इसे, आउटपुट क्या आता है। ये एरर आ रहा है। एरर का वजह आप समझ सकते हैं, ये कमेंट का एक सेकंड पार्ट छूट गया था। लेट अस रिमूव इट आउट। अब इसे रन करें, पूरा प्रोग्राम ही रन करें। देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से सब छोड़िए, यहाँ पर इसे देखिए ई। ये ई क्यों प्रिंट कर रहा है, ध्यान दीजिए, क्योंकि कैरेक्टर एट 9। तो S1 स्ट्रिंग जो है हमारा, जो कि ये है, इसमें 9th पोजीशन पे ई है। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते, 0 1 2 3। इसके इंडेक्स 3 पे क्या है, आई है। आइए यहाँ पर 3 करके देखते, 3। अब आप देखिए, यहाँ ई आ रहा था, लास्ट आउटपुट देखिए ई आ रहा था। अब यहाँ पर आई आ रहा है। आई क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 लिखने से क्या हुआ, स्ट्रिंग S1 में 3rd पोजीशन पे इंडेक्स 3 पे क्या है, 0 1 2 3। आई हमारा इंडेक्स 3 पे। दैट्स वेरी इजी। और इसी का दूसरा रूप है S3 डॉट कैरेक्टर है। S3 देखिए क्या है, S3 में 4 लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ क्या करा रहे हैं, S3 में इंडेक्स 2 पे क्या है, तो इंडेक्स 2 पे देखिए S3 क्या है, S3 है 4। तो इंडेक्स 2 देखते हैं, 0 1 2 U है। और आप देखिए ध्यान से, वही U यहाँ पे आ रहा है। तो हम कैरेक्टर ऐड का जो रिटर्न है, कैरेक्टर ऐड फंक्शन कैरेक्टर टाइप डेटा रिटर्न करता है। तो रिटर्न हमें कैरेक्टर वेरिएबल में लेके उसे फर्दर डिस्प्ले करा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और हम जो भी काम करा सकते हैं। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक लोग कमेंट बना सकते हैं, क्योंकि अब एक नया चीज शुरू हो रहा है। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। यहाँ
यहाँ तक हम लोग पहले से कमेंट बना देते हैं, यहाँ से काम शुरू करते हैं। अब ये पार्ट सिर्फ रन करेगा। अब यहाँ पर इस काम के लिए मैंने एक स्पेशल वेरिएबल भी बना लिया है ताकि ऊपर के वेरिएबल्स को हमें रेफर ना करना पड़े। ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान देके समझने वाला चीज है। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा इसे देखिए, 3 बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा क्लियर। ये भी कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन का गेट कैरेक्टर। देखिए ये एक हमारा स्ट्रिंग है। गेट कैरेक्टर फंक्शन को यूज करने के लिए हमें एक कैरेक्टर एरे बनाना होता है। ये हमारा जो फंक्शन था, हमारा कैरेक्टर ऐड फंक्शन, ये सिर्फ एक अक्षर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए था। सिर्फ हम गिवन स्ट्रिंग से एक अक्षर निकाल सकते हैं। अगर हम एक से ज्यादा अक्षरों को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास गेट कैरेक्टर फंक्शन है। तो यहाँ पे कुछ बंदिशें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान से समझना होगा। पहले हमें ये किसी तरीके से समझ लेना होगा कि हम कितना अक्षर निकालना चाहते हैं मैक्सिमम। तो उसका हम एक एरे, कैरेक्टर एरे बना लेते हैं, कैरेक्टर बी है बफर। हमने ये वेरिएबल है, तो कोई भी नाम हो सकता है बी। ये कैरेक्टर एरे हम बना रहे हैं। जिन लोगों को एरे में तकलीफ है, एरे नहीं समझ में आता है, वो एरे का वीडियो डाला हुआ है, वो पक्का देख लीजिए, तभी ये। तो न्यू कैरेक्टर 5, ये क्या हुआ कि 5 कैरेक्टर्स को रख सकने लायक एक कैरेक्टर एरे डीयूएफ नाम का बना दिया। इसमें मैक्सिमम हम 5 ही अक्षर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, ध्यान से समझिए। तो जैसे ही हमने ये बफर बनाया तो हुआ क्या है, BUF 0 बन गया, BUF 1 2 3 4, टोटल 5 बन गया। ये 5 खाली स्थान बन गया है इस लाइन के एग्जीक्यूशन से। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, गेट कैरेक्टर फंक्शन में कुछ पैरामीटर, 4 पैरामीटर, इसमें 4 आर्ग्यूमेंट्स हम लोग डालते हैं। ये 8 क्या है, 11 क्या है, वो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 8 इज द स्टार्ट, 11 इज द एंड। 11 जब हम लिखते हैं, मतलब सेकंड आर्गुमेंट जो लिखते हैं, तो जो भी चीज लिखेंगे उसमें एक घटा देना है, ठीक है। यानी अगर हमने 11 लिखा है तो वो 10 को रेफर करें। ये 8 से 10 क्या है, ये भी मैं बतला रहा हूँ। इट रेफर्स टू द एंड। बफर इज व्हाट, द कैरेक्टर एरे। अब सिंगल लाइन कमेंट का भी यूज देखिए, बफर इज कैरेक्टर एरे, only 5 characters. 0 is the place in buffer array. ये समझ में, अब जब मैं समझाऊंगा तभी आएगा। देखिए जब हम 8 और 11 लिख रहे हैं, 8 and 11, then what is happening? Look at it. First count, what is it? The 8th position. 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th इंडेक्स पे हमारा टी स्टार्ट हो रहा है, टी। 11th में क्या होता है, 9 10 11, 11th पे हमारा ओ हो रहा है, ठीक है। तो 8 और 11 का मकसद हमारा ये है कि भाई 8वें अक्षर से लेना शुरू करो, यानी कि वो टी से लेना शुरू करेगा। कहां तक, जब 11वें, 11वां कौन सा है, ओ। मगर यहाँ पर जितना भी हम लिखते हैं उसमें से एक घटा देना है, तो एक घटा दीजिए तो आ गया क्या हमारा 10 पर। तो एम है हमारा 10th कैरेक्टर, ओके, या 10th इंडेक्स। जो भी यहाँ लिखेंगे उसे एक घटा देना है, ये। तो वहां से वहां तक क्या करेगा, वो कैरेक्टर को लेकर के DEM, ये 3 चीज हो रहा है। DEM 8 9 10, 8 हो गया डी, ई और एम 10। ये 3 अक्षर को लेकर के वो इस वेरिएबल में डाल देगा। इसमें कहां पर से डालेगा वो हम यहाँ 0 से बता रहे हैं। 0 का मतलब भैया आप 0 इंडेक्स से डालना। तो देखिए 0 इंडेक्स से डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, DEM। ये हमारा बफर जो हमने 5 अक्षरों के लिए मैक्सिमम बनाया है, वो हमारा इस तरह से DEM आ गया इसमें, और ये 2 अभी खाली, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, BUF को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको प्रिंट करा के देखते। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने कहा कि एक बार 2 बार आप देखिए। ये
करना होगा। तो आइए एक बार फिर से कंपाइल करा दिया जाए, अब रन करें। देखिए ये DEM दिखा रहा है, ये दोनों आउटपुट कभी मत देखिए, इसे मत देखिए, पहले आप इसे देखिए। ये DEM क्यों आ रहा है? ये DEM इसलिए आ रहा है क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद, यानी इस ऑपरेशन के बाद 8वें स्थान से 11 मतलब एक कम यानी 10 तक DEM को लिया और वो एरे में कहां से रखना शुरू करेगा पोजीशन? 0 से, तो इसलिए 0 पोजीशन से आया और ये DEM था। और इसका दूसरा पहलू देख, हम लिख रहे हैं इंडेक्स 1 से 2 तक जाओ और उसे बफर में डाल दो और पहले स्थान। अब देखिए क्या हो, इंडेक्स 1 पे क्या है वो देखिए, 0 पे ये है, 1 पे H है और 2 में ये है। 2 में 1 घटा दीजिए तो 1 हो गया, यानी कि सिर्फ वो H को लेगा और उसे कहाँ रखेगा? वो H को रखेगा बफर 1 में रखेगा। तो बफर 1 में क्या है? यहाँ H आ जाए, ठीक है। D और M एज इट इज रह गया, सिर्फ उस स्थान को चेंज किया मैंने H, और इसी वजह से आउटपुट जब हम अब की जब बफर का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो DHM हमें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहला इंडेक्स क्या है? H, और दूसरा दूसरा मतलब 1 घटा दो, एक तो एक ही अक्षर वो ले रहा है, एक ही अक्षर हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, और उसे हम कहाँ डाल रहे हैं? बफर के पहले इंडेक्स से स्टार्ट करो उसको डालना है। तो जो भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो यहाँ आ गया, तो यहाँ और यहाँ का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ये था पहले जो था वही रह गया है। अब आप देखिए मैंने यहाँ 13 और 15 लिखा है, आप खुद गेस करिए क्या होगा। 13 तक पहुंचते हैं, 8 में 11 तक यहाँ था, 12 13, 13 में हमारा O है और हमने क्या लिखा है? 15 लिखा, तो एक घटा दिए 14, तो F, O और F आएगा और हम इसे रख कहाँ रहे हैं? 2, तो 2 कौन है? ये है, तो यहाँ O आ जाएगा और यहाँ F आ जाएगा, ठीक है। वो जो पहले से था वो इरेज हो गया, वो आ गया, तो इसलिए आउटपुट क्या हो रहा है देखिए हमारा DHOF, DHOF, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट यहाँ कर सकते हैं। ओके, अब हम इसे भी कमेंट बना देते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया है, नहीं समझा आपने तो आप एक बार फिर से रेफर करिए वीडियो को, समझ जाएंगे। अब हम लोग स्ट्रिंग कंपैरिजन पर आते हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन को ढंग से समझने के लिए आपको कुछ बातें बहुत जरूरी है वो समझनी होगी, ध्यान से देखिए, ये सबसे जरूरी। जावा में एक स्ट्रिंग पूल नाम का कुछ होता है, वो समझिए। स्ट्रिंग पूल किसे कहते हैं? String pool is nothing but a storage area in Java heap where string literals is stored. It is also known as string pool or string constant pool. It's just like object allocation. आसान शब्दों में इसे आप समझिए कि अगर हम ये मेमोरी का बचत करने के लिए, जो रैम होता है, रैम का बचत करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। क्या सिस्टम? उसको ध्यान, मान लीजिए हमने स्ट्रिंग 1 बनाया जिसका वैल्यू रखा पाई, मान लीजिए स्ट्रिंग 2 बनाया जिसका वैल्यू हमने रखा डेटा, और मान लीजिए हमने एक और स्ट्रिंग बनाया स्ट्रिंग 3 जिसका वैल्यू हमने रखा अगेन पाइथन। तो ये पाइथन और ये पाइथन क्या है? एग्जैक्टली सेम है। तो जावा पूल क्या करता है कि क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, ये भी पाइथन है भाई और ये भी एग्जैक्टली पाइथन ही है, तो ये जावा पूल क्या करता है कि स्ट्रिंग 1 के लिए अलग मेमोरी लोकेशन और स्ट्रिंग 3 के लिए अलग मेमोरी लोकेशन न दे करके वो एक ही मेमोरी लोकेशन को यूज करता है दोनों वेरिएबल्स, यानी कि पाइथन के लिए दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं हो, एक ही मेमोरी लोकेशन को ये दोनों रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। जबकि यहाँ देखिए स्ट्रिंग 2 का वैल्यू क्या है? डेटा था, ये टोटली अलग है, ठीक है। तो इसके लिए अलग मेमोरी लोकेशन हो। तो जब हम इस तरीके से ऐसा करते हैं तो ये str1 और str3 दोनों जावा में एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। आप ध्यान से देखिए डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि str1 पाइथन है, वो ये एक मेमोरी लोकेशन मान लीजिए है, और स्ट्रिंग 2 डेटा साइंस है, ये अलग हो गया, और स्ट्रिंग 3 भी पाइथन ही है, तो वो क्या कर रहा है? ये एक ही एड्रेस को, एक ही लोकेशन को रेफर कर रहा है। ये जावा स्ट्रिंग पूल होता है, ये ऐसा ही काम करता है, ऐसा बनाया गया। मगर जब हम
इस तरीके से अलग अलग स्ट्रिंग बनाते हैं, जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो आपने देखा क्या होता है, मगर जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाते हैं, जैसे स्ट्रिंग 1 इस तरीके से जावा सी प्लस प्लस डेटा साइंस, तो क्या होता है, तो वो अलग अलग चीजों को, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, सबके लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन बनता है। तब वहां पर क्या होता है, वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं। जैसे देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग 4 जब मैंने इस तरीके से बनाया, तो यहाँ पर हमने न्यू न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगा। स्ट्रिंग 5 के लिए अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगा, इवन दो दे हैव द सेम कंटेंट। अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं तो अलग अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट होता है उनके लिए। अब इस एग्जांपल को देखिए, जैसे स्ट्रिंग हेलो, स्ट्रिंग 2 भी हेलो है, दोनों सेम, यानी कि ये क्या है, ये और ये जो है, ये एक ही मेमोरी एड्रेस को ये कर रहा है, रेफर कर रहा है। जबकि जब हम स्ट्रिंग 3 बना रहे हैं, स्ट्रिंग 3, तो हम एक नया तरीके से बना रहे हैं, न्यू स्ट्रिंग एलोकेट करा रहे हैं, न्यू। तो ये क्या हो रहा है कंटेंट सेम है, बट नाउ इन दिस केस स्ट्रिंग 3 इज रेफरिंग टू अ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। वो जावा कांस्टेंट टूल जो है हमारा, वो ये दोनों को एक जैसा रेफर कर रहा है, ये S1 और S2 जो है वो एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है। जबकि जब हम न्यू से अगर हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो फिर एक नया मेमोरी लोकेशन वो रेफर कर रहा है। यही बात आपको समझना है, इसलिए मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और ये एकदम नया चीज है आपके लिए, तो हो सकता है आपको एक बार में न समझ में आए, मगर स्ट्रिंग के बारे में ये बातें आपको जानना है तो आप एक बार दो बार आप देखिए, थोड़ा सा इंटरनेट से भी स्टडी करिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी आपकी। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है कि अभी जब हम S1 और S2 को कंपेयर करेंगे तो दिखलाएगा ट्रू। क्यों ट्रू दिखलाएगा, क्योंकि S1 और S2 जो है वो एक ही चीज को रेफर कर रहा है। और इक्वल फंक्शन जब हम यूज करेंगे S1 डॉट इक्वल, तो भी वो ट्रू दिखलाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इक्वल ऑपरेटर और डबल इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है, और ये जो फंक्शन होता है, ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है। ऑपरेटर क्या करता है, ये अलग तरीके से काम करता है, ये चेक कर रहा है कि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो ट्रू, और अगर नहीं कर रहा है तो फॉल्स। जैसे S1 और S2 एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, इसलिए ट्रू दिखला रहा है। जबकि S1 और S3 फॉल्स दिखला रहा है, इवन दो कंटेंट्स आर सेम। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हेलो अलग मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है और S3 अलग मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स दिखा रहा है, हालांकि ये दोनों का कंटेंट सेम है। तो इक्वल टू ऑपरेटर जो है इस तरीके से काम करता है, इसीलिए हम लोग आमतौर पे स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इस ऑपरेटर का कम इस्तेमाल करते हैं या न के बराबर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस तरह का कॉम्प्लिकेशन है इसमें थोड़ा। जबकि इक्वल फंक्शन क्या करता है, इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन कहाँ लोकेटेड है, ये बस चेक करता है कि कंटेंट सेम है या नहीं। S1 का कंटेंट सेम है, हेलो है, और S2 का कंटेंट सेम है, S3 का कंटेंट सेम है, तो ये ट्रू दिखाएगा। यानी कि S1 को जब हम S2 से कंपेयर कर रहे हैं तो वो ट्रू हो रहा है, और S1 को S3 से करें तो भी ट्रू हो रहा है। तो ये कंटेंट को चेक कर रहा है और ये एड्रेस को चेक कर रहा है, बस यही अंतर है। अब आप डेमो में भी देख सकते हैं। इसको हटाना होगा, अगर एक बार में ना समझ में आए, मैं बार बार कर रहा हूँ, वीडियो को बार बार देख। देखिए ये ट्रू दिखला रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ट्रू दिखला रहा है। जबकि जब हमने न्यू बना लिया तो फिर अब ये चीज अलग दिखला रहा है। इसी चीज को हम इक्वल्स के साथ अगर करते तो हमारा